ओके, हम आ गए हैं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्टवुड सोलर आंसर्स नहीं होगा, ये सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशंस को रिप्लेस मार दिया हमारा टाइपिस्ट आंसर बोल के। उसको बोला था कि जहां जहां सॉल्यूशन लिखा हुआ वहां आंसर लिख देना, जैसे यहाँ पे आंसर लिखते हैं ना, तो वो रिप्लेस ऑल मार दिया होगा। Westwood Solar Solutions (WSS) has mastered the art of developing solar domestic water heater that fulfill customer needs. WSS designer and product developers focus on solutions to get rid of everyday hassles and transform these into a pleasant experience. WSS also has a wide service network that spans the length and breadth of India to ensure good care of customer and products by providing a prompt and pleasant service experience. तो इनका काम क्या प्रोडक्ट बनाने का है कि सर्विस देने का है? दे आर डिजाइनर्स, ओके, एंड प्रोडक्ट डेवलपर्स। आर्ट ऑफ डेवलपिंग, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि सर्विस देने का काम है। Has also a wide service network that spans the length and breadth of India to ensure good care of customers and products by providing a prompt and pleasant service experience. In the past, WSS had a dominant position in the Indian market. However, over the past 4 years, it has been found that its profit and its share in the market have come down. नुकसान हो रहा है इनको। WSS has business model comprising of following steps. Firstly, WSS high qualified and skilled experts visit customer locations to identify and design the appropriate heater as per customer requirement. जनरली जैसे ये कोई होटल में, हॉस्पिटल में होता होगा, है ना, उनके जरूरत के हिसाब से वाटर हीटर बनाया जाएगा। WSS experts are recognized as best in the industry and customers agree that they produce the most effective solutions to their complaints. At WSS, in the laboratories, the heater design goes through intricate, complex and dynamic process. Prototypes are developed on the basis of discussions in previous step. Thereafter, these prototypes are tested. Once a final design is decided, such design is passed to manufacturing division for production. मतलब ये लोग डिजाइनिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। Then WSS manufacture appropriate solar water heater to the desired specification and installs at the customer location. After the heater's installation, WSS renders annual maintenance services for which it is well known in the industry. इसको बोल रहे हैं कंप्लीट पैकेज है इनके पास। कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोलर हीटर डिजाइन कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं और मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। इसको बोलते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन। WSS customer pay total price for design, manufacture, initial installation of solar water heater and annual maintenance charge after that. सब कुछ का पैसा कस्टमर से लेता है। Total prices are quoted before design work begins. तो पूरा पैकेजिंग सिस्टम है, प्रोजेक्ट बेसिस पे लोग काम करते होंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। Although customers the high quality of the solutions provided by WSS team, however, they are complaining that the overall prices are too high. Customers have said that although other suppliers do not solve their problems as WSS does, but they do charge less. Consequently, WSS has lowered down its prices to compete in the market. There is a doubt that the manufacturing and installation stages of the business model are not contributing sufficiently to the firm since cost at both stages are going high. प्राइस तो कम कर दिया, बट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन स्टेजेस में कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है। पार्टनर्स ऑफ WSS हैव कंसिडर्ड दिस सिचुएशन शुड नो लॉन्गर कंटिन्यू एंड हैव रिकमेंडेड दैट अ वैल्यू चेन एनालिसिस टू बी कंडक्टेड एज टू आइडेंटिफाई द वे फॉरवर्ड फॉर WSS. Although majority of partners are in the agreement of the proposed value chain analysis, however, senior partner W has stated that value chain analysis is an inappropriate idea. She says that she has heard a number of criticisms of the value chain model. Assuming yourself as a management accountant of WSS, answer the following questions. First is discuss the benefits that may accrue to WSS from conducting a value chain. Second, criticisms of Porter's value chain in context of WSS.
थर्ड, एक्सप्लेन अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू चेन दैट मे बी सूटेबल फॉर WSS. क्या बोलेंगे बताइए? बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन में क्या बताएंगे? कुछ एक दो पॉइंट सोचिए, एक दो पॉइंट तो क्लिक करें. वैल्यू चेन का इनको फायदा क्या होगा? चलिए, वेरी गुड. एक्टिविटीज का एनालिसिस होगा, वेरी नाइस. फिर एनालाइज करके क्या मिलेगा? जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है उसके ऊपर आप काम करेंगे, और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है उसको आप एलिमिनेट करेंगे. वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंस बना रहना चाहिए और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने का कोशिश किया जाना चाहिए. गुड, ये बेनिफिट मिलेगा. दूसरा, आपको पता चल सकता है, जैसे सेगमेंटेशन एनालिसिस करना मुमकिन हो सकता है. आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है. जैसे आपके यहाँ डिजाइन सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, इंस्टॉलेशन सेगमेंट है, आफ्टर सेल सर्विस सेगमेंट है. तो आप अपना सेगमेंटेशन एनालिसिस कंडक्ट करके अपना वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. और क्या कर सकते हो? आप पता लगा सकते हो कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी कहां पर है, किस लिए आप यूनिक हो. जैसे कस्टमर्स अग्री कर रहे हैं ना यहाँ पर कि आपका यहाँ पे डिजाइन वगैरह का जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो वो कोई और नहीं करता, मतलब यू हैव द कोर कॉम्पिटेंसी. ठीक है. तो वैल्यू चेन एनालिसिस का बेनिफिट्स जब भी लिखेंगे तो क्वेश्चन से भी कुछ कटआउट्स निकाल निकाल के उसमें एसोसिएट करते जाइएगा. जैसे मैं दिखाता हूं. पहला देखिए, फॉलोइंग बेनिफिट्स में यहां पे बोल रहा है कि आप एक्टिविटीज को एनालाइज करिए, जो काम का नहीं है उसको एलिमिनेट करिए. ये बोल रहा है एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. जैसे डिजाइन सोल्यूशन तो बहुत अच्छा दे रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग में आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा वादा लग रहा है, आपको भी नहीं अफोर्ड हो रहा. प्राइस तो आपने कम कर दिया बट आपको अफोर्ड नहीं हो रहा. ठीक है. तो फॉर WSS, वैल्यू चेन कैन प्रोवाइड विथ मोर अनएम्बिगुअस पिक्चर ऑफ द वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन एज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स. नेक्स्ट, आपको पता चलेगा एनालाइज करके अदर फर्म्स का कैसा पोजीशन है, कि वो लोग कॉस्ट कम कैसे कर पा रहे हैं. हाउ अदर्स आर एबल टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, हाउ अदर फर्म्स आर एबल टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. फिर आप अपने यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या करते हो वो आप पहचान सकते हो. ठीक है. आपको थ्रू डिटेल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस WSS may be able to ascertain the reason of falling down in such situation, and partners may be able to take decision regarding the future vision of the firm. जैसे यहाँ पे लिखा ना, राइट नाउ WSS इन अ सिचुएशन वेयर इन इट इज बीइंग डिफीटेड ऑन प्राइस बाय सम ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, हाउएवर इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट आंसर्स नहीं सोल्यूशंस प्रोवाइडर टू कस्टमर्स प्रॉब्लम. बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर होने के बावजूद आप क्यों प्राइस पॉइंट पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको मदद करेगा बाय हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, that as to why price why आप यहां पे लिखिए company is
चार्जिंग हाई प्राइस, ये भी आपको पता चलेगा। आपको पोस्ट वैल्यू चेन कुछ और रियलाइजेशन हो कि कॉस्ट मैनेजमेंट में आप जो जो पढ़े वो सब टेक्निक को अप्लाई कर सकेंगे। ये एक नया चीज है इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड कि आप बेंचमार्किंग कर सकेंगे, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लगा सकेंगे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकेंगे, अदर टेक्निक्स अप्लाई करके अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। बेंचमार्क, बीपीआर, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, सारे एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को निकाल देने से फायदा होगा। बेंचमार्किंग में आप कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस को अपने यहाँ पे एवेल्युएट करके देखते हैं कि आप भी उस चीज को अचीव कर सकते हैं कि नहीं। ओके। बीपीआर में आप पूरा प्रोसेस को री इंजीनियर करके देखते हैं कि कोई ड्रास्टिक चेंज लाया जा सकता है क्या। फर्दर हो सकता है आपको कोई आउटसोर्सिंग का आइडिया आ जाए। मतलब पॉइंट इज कि वैल्यू चेन एनालिसिस कंडक्ट करके यू विल डेफिनेटली हैव सेवरल ऑप्शंस टू थिंक फॉर। फिर आप अपने यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हो। वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद परफॉर्मेंस मेजर को और अप्रोप्रिएट कर सकते हो कि आपके यहाँ पे डिजाइनिंग का काम या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंस्टॉलेशन का काम कैसा हो रहा है। परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को डेवलप कर सकते हो आप। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड अप्रोप्रिएट मेट्रिक्स विच विल हेल्प WSS टू रिकॉग्नाइज where value and profit are being added in the business model. Where value and profit are being added to the business model. So these are some benefits of value chain that WSS can enjoy if they do value chain analysis. तो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है कि आंसर क्या लिखना है आपको। कॉमन सेंस से ही जो पॉइंट्स क्लिक करें कि कंपनी का भला क्या हो सकता है। वैल्यू चेन से दो चीज का याद रखो कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आप खोज सको, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी हटा सको, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आप वैल्यू चेन को पढ़ते वक्त सीखे तो वो सब आपका आंसर में आ जाना चाहिए। कॉम्पिटिटर से आप बेटर क्यों नहीं हो पा रहे हो, वो सब रीजनिंग आप खोज पाओगे जब आप इन डेप्थ में अपने सारी एक्टिविटीज को तोड़ के एनालाइज करोगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला था कि क्रिटिसिज्म करिए पोर्टर्स वैल्यू चेन का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ WSS। जैसे WSS में देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है बट डिजाइनिंग से सब कोई बहुत खुश है। तो डिजाइनिंग एक तरह से सर्विस ओरिएंटेड जॉब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब तो ये उतना अच्छा से कर भी नहीं पा रहा है। तो जब हम यहाँ पे बात करें क्रिटिसिज्म्स ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन की, क्रिटिसिज्म ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन की बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए WSS तो एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री जैसा काम कर रहा है। इसका मेन तो डिजाइनिंग स्ट्रेंथ है, तो उसमें पोर्टर्स वैल्यू चेन नहीं भी लग सकता है। बताया था ना, पोर्टर्स वैल्यू चेन सर्विस इंडस्ट्री में उतना फ्रूटफुल नहीं होता क्योंकि उनके जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे सर्विस वैल्यू चेन में मिलते नहीं है। सर्विस वैल्यू चेन अलग होता है देन प्रोडक्शन वैल्यू चेन। तो क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, द वैल्यू चेन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द फर्म्स बिलोंगिंग टू सर्विस इंडस्ट्री। तो लिख दे रहा हूं नॉट फॉर सर्विस इंडस्ट्री। नंबर 2 कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे भी आंसर्स को सॉल्यूशंस करिएगा। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, कभी कभी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क जो वैल्यू चेन इग्नोर करता है। व्हाट इज वैल्यू नेटवर्क? जैसे मेनी टाइम्स आपका कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरैक्शन होता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हैं, उससे भी आपको कॉस्ट रिडक्शन मिलता है। ओके, कभी कभी आपके पार्टनरशिप्स विद सप्लायर्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उससे भी कॉस्ट रिडक्शन मिलता है। उस चीज को वैल्यू चेन में कवर नहीं किया जाता।
This criticism is specifically relevant to WSS because its major business resort to cooperative relationship that the experts have with their customers. If WSS decides to outsource manufacturing, अगर मैन्युफैक्चरिंग आप आउटसोर्स ही कर देंगे तो आपका डिजाइन टीम जो कस्टमर से इंटरैक्ट करके एक सोल्यूशन निकालता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला को इजीली कम्युनिकेट कर पाता है और अपने नजर में काम करवा लेता है, वो चीज पूरा गायब हो जाएगा. So if WSS decides to outsource manufacturing and focus on design and service, this will become even more relevant where relationships are utmost important. So customer relationships का importance value chain नहीं देता है, ignores importance of customer relationships. और टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस माना गया लास्टली. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एक्चुअली आपका नोट्स में स्टार्टिंग में नहीं था, बट इस क्वेश्चन से आपको पढ़ने को मिला. ऐसे ही इन जनरल आपको समझ में आता ही है कि वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं था, बस इतना आपको मालूम था. मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, ये आपको मालूम था. बट और भी आप बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और वैल्यू नेटवर्क्स को इग्नोर कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है. और लास्टली आ रहा है आपका कि अदर फॉर्म ऑफ कोई वैल्यू चेन है जो इनके यहां सूट करेगा. क्या आंसर है? क्या रेकमेंड करोगे आप? सर्विस वालों के लिए क्या था? शॉप मॉडल. वेरी गुड. WSS requires to acknowledge that the nature of its business is turning from manufacturing to a आंसर प्रोवाइडर नहीं होगा, सोल्यूशन प्रोवाइडर होगा. और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म, इसके लिए आपको रेकमेंड करना चाहिए वैल्यू शॉप मॉडल. ठीक है, किसने कितना खोजा वो सब नाम का जरूरत नहीं है. चार्ल्स टेबल और ओस्टेन ने खोजा, वो सब से मतलब नहीं है. दिस कॉन्सेप्ट एम्स टू सर्व फर्म्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर. इट डील्स विथ प्रॉब्लम्स, फिगरिंग आउट द मेन एरिया रिक्वायरिंग सर्विस एंड फाइनली कमिंग अप विथ अ सोल्यूशन. तो आप अपने यहां पर वैल्यू शॉप मॉडल अप्लाई कर सकते हैं. उसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज जो थे वो पहले वाले ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है. ओके, वैल्यू शॉप मॉडल में सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वो सेम सपोर्ट एक्टिविटीज है जो पोर्टर्स वैल्यू चेन में है. प्राइमरी एक्टिविटीज यहां पे डिफरेंट है. सिंस WSS टीम कम्युनिकेट विथ कस्टमर्स टू फाइंड अ सोल्यूशन होगा, जहां जहां आंसर है वहां पे सोल्यूशन बैठा देना आपको. टू फाइंड अ सोल्यूशन बिफोर टेस्टिंग ऑफ डेवलप प्रोटोटाइप्स दे विल फाइंड द वैल्यू होगा यहाँ पे वैल्यू शॉप कंपैटिबल एंड इफेक्टिव मॉडल टू यूज. कि आप अपना प्राइमरी एक्टिविटी खाली प्रॉब्लम एक्विजिशन और प्रॉब्लम सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए ना, बाकी चीज को छोड़ दीजिए आप. वो जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशन आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, वो सबको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं. ठीक है, तो यही इस इलस्ट्रेशन का टेक अवे है कि कैसे आंसर को सजाना है. ठीक है, फिलहाल तो अभी तक आपका कोई केस स्टडी क्वेश्चन में मई 18 नवंबर 18 का जो एग्जाम है उसमें एक ही क्वेश्चन आया है और वो भी छोटा सा बजटिंग के ऊपर. और अभी जो इतना केस स्टडीज अपने पढ़ रहे हैं वो सबसे अभी तक तो कुछ पूछा नहीं है. और केस स्टडी से एक रिस्क है ना कि चेक करने वाले के ऊपर भी प्रेशर बहुत है, फट से काट नहीं सकता, और जो पढ़ा हुआ है वही एक पेपर चेक कर सकता है. ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए इंस्टीट्यूट सेफ साइड खेल रहा है. अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर पूछ रहा है. हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट्स आपको हर एक जगह सिखाया गया उसको आपको ध्यान देना है. ठीक है, एनीवेज केस स्टडी से फायदा क्या हो रहा है ना कि थ्योरी में जो चीज कई बार रजिस्टर नहीं होता है, केस स्टडी के बहाने कुछ पॉइंट्स और सेट हो जाते हैं. ये एक फायदा होता है. तो उसके कारण ओवरऑल अगर हम देखें तो थ्योरी हमारा स्ट्रांग हो जाता है. फाइन, तो ये वाला खत्म हो गया भाई. Okay, we are starting with our question number 2. This is the latest question framed on Porter's 5 forces in RTP May 19. WG is a family owned business
The family owns 80% of the shares. The remaining 20% is owned by 6 non-family shareholders. It manufactures cardboard boxes for customers, which are mainly manufacturers of shoes, clothes, crackers, etc. Now the board is considering to join the paper tube market as well. Cardboard box के बाद paper tube market में घुसना चाह रहे हैं. Paper tube, also known as cardboard tubes, are cylinder-shaped components made with cardboard. Paper tubes can be used for a wide range of functions. Paper tubes are usually ordered in bulk by many industries that rely on paper tubes include food processing, shipping and postal service, automotive manufacturing, material handling, textile, pulp and paper packaging and art, etc. Paper tubes cost approximately 1% to 3% of total cost of customers finished goods. Customer का जो finished goods बनाते हैं उसमें 1% to 3% total cost आता है. The information about paper tubes is as follows. Paper tubes क्या होता होगा? सूता किसके ऊपर आता है? थ्रेड. घर में सूता रखते हैं ना, सुई धागा. वो धागा किसके ऊपर रोल्ड होता है? कार्डबोर्ड ट्यूब ही तो है वो. The paper tubes are made in machines of different size. The lowest cost machine is of 1,89,000 including GST at the rate 5%. GST VST क्यों बता रहा है? And only one operator is required to run this machine. 2 days training program is required to enable untrained person to run such a machine efficiently and effectively. A special paper is used in making paper tubes and this paper remains in short supply. ये एक यहाँ पे चैलेंज है. Presently 5 major manufacturers of paper tubes have a total market share of 75%. Huge market share लेके बैठे. Offer product ranges which are similar in size and quality. सेम ही चीज बेचते हैं, मतलब कंपटीशन भी है होगा. The market leader currently has 24% share and the 4 remaining competitors have on average 12.75% share. The annual market growth rate is 3% per annum during recent years. A current report, which is Insight on Global Activities of Foreign-Based MNCs, released the news that now MNCs are planning to expand their packaging operations in overseas market by installing automated machines to produce paper tubes of any size. तो MNCs भी नए मार्केट में एंट्री ले रहे हैं. Another company, HEG, manufactures a small, however increasing, range of plastic tubes which are capable of housing small products such as foils and paper-based products. Currently, these tubes are on an average 15% more costly than the equivalent sized paper tubes. तो अब एक नया चीज आ गया पेपर ट्यूब की जगह प्लास्टिक ट्यूब. वाई? बिकॉज पेपर ट्यूब में तो पेपर जो है वो शॉर्ट सप्लाई में ना, इसलिए. Assess whether WDG should join the paper tubes market as a performance improvement strategy. Note, use Michael Porter's 5 forces model. 5 पहले फोर्स का नाम पता होना चाहिए. 5 फोर्स है. पहला बायर्स बार्गेनिंग पावर, suppliers bargaining power, threat of substitute products, threat of new entrants, और इंट्रा इंडस्ट्री कंपटीशन का नाम है बेसिकली थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी. कॉम्पिटिटिव राइवलरी. अब इस 5 पैरामीटर पे आपको बताना है कि इस कंपनी में क्या क्या थ्रेट हैं. जैसे पहला, while applying the model in this above case, it can be observed that low cost of the machine, along with the fact that an untrained person can even use the machine within 2 days of training efficiently and effectively, that means there is a threat of new entrant, high threat of new entrant. High threat of new entrant because even machinery cost is very low and untrained person will only need 2 days training. So there is no entry barrier here. Then buyer power could be high because since customer buy paper tubes in bulk, along with the fact that there is a insignificant difference between the product of alternative supplier. सबका product एक जैसा ही है.
और भी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर लोग हैं जो सेम चीज बेचते हैं, और ऊपर से उनका जो कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1 to 3% ही है। तो कस्टमर को कोई ऐसा परवाह नहीं रहेगा कि मुझे ये पेपर ट्यूब इसी पर्टिकुलर कंपनी से लेना है। तो कस्टमर्स पावर इज ऑल्सो हाई। उसका रीजन क्या है? रीजन भी खोजना है कि एक तो कॉस्ट उसका बहुत ही कम है पेपर ट्यूब का, और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लायर। नेक्स्ट, अब पेपर का भी शॉर्टेज है, इसलिए सप्लायर बार्गेनिंग पावर भी हाई हो सकता है। सप्लायर में रेज द प्राइस, दैट वुड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ स्पेशल पेपर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। देन 5 मेजर प्लेयर है यहाँ पे जिनके पास 75% शेयर है, तो उनका सारा प्रोडक्ट भी सेम साइज का है, इसलिए हाई राइवलरी भी रहेगा और मार्केट में ग्रोथ भी स्लो है। एक होता है ना कॉम्पिटिटिव राइवलरी बहुत हो, बट मार्केट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होता है तो राइवलरी नहीं होता, क्योंकि सबके पास काम है ना। अगर ग्रोथ रेट बहुत हाई होगा तो जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो भी आपको अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज सबके पास काम है। अभी ग्रोथ रेट भी स्लो हो और मार्केट में 5 ही बड़े प्लेयर हैं तो आपस में सेम ही चीज बेच रहे हैं, तो राइवलरी भी हाई होगा। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का भी थोड़ा सा थ्रेट आ रहा है, प्लास्टिक ट्यूब का, प्लास्टिक ट्यूब। ओके, तो और एक थ्रेट आ रहा है एमएनसी का, फॉरेन बेस्ड एमएनसी जो ओवरसीज मार्केट में पैकेजिंग यूनिट बैठा रहे हैं, न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, तो बात ये हो रही है, कंक्लूड करना आपको, WDG might enter this market due to low capital investment, but this would also lead to other potential entrants. The easy of entry, threat of substitute, existence of established competitors, possible entry of MNCs, competitors struggling due to slow growth are putting the potential of WDG into the question to achieve any sort of competitive advantage. So ये conclusion आ रहा है यहाँ पे। कंक्लूजन क्या आ रहा है कि आपके यहां पर एक क्वेश्चन तो है कि आपको कोई फायदा मिलेगा कि नहीं। ज्वाइनिंग दिस मार्केट में बी गुड मूव इफ WG वुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर पेपर ट्यूब्स एट लोवेस्ट कॉस्ट। ज्वाइन इफ ओनली यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर एट लोवेस्ट कॉस्ट। आपको और भी तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए कि और कौन सा मशीनरी है, किस तरह का मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है जिससे कॉस्ट कम हो। टू असेस फिजिबिलिटी, WG मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल सिनर्जीज बिटवीन इट्स एग्जिस्टिंग कार्ड बॉक्सेस एंड प्रपोज्ड ऑपरेशन ऑफ पेपर ट्यूब्स, जिससे कॉस्ट कम हो पाए। तो बात ये कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा पेपर ट्यूब में अभी आपको ज्वाइन कराना। आपको और कोई अदर रास्ता मिले तो आप जरूर देखिए। बहुत अच्छा एनालिसिस था यहाँ पे पोर्टर्स 5 फोर्सेस को लेकर। पोर्टर्स 5 फोर्सेस में मैं यहाँ पे वापस लिख देना चाहता हूँ कि पहला यहाँ पर हम 5 फोर्स को एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पे हम बताया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कैसे है, मतलब बिकॉज देर इज लो बैरियर टू एंट्री, लो बैरियर टू एंट्री। दूसरा यहाँ पे थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स है, क्योंकि कस्टमर्स को कुछ यूनिक चीज नहीं मिल रहा है और कॉस्ट भी बहुत कम है उसका पैकेजिंग का। फिर थर्ड आ रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बिकॉज शॉर्ट सप्लाई में पेपर। फिर हाई राइवलरी है बिकॉज बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में लीड कर रहे हैं और ग्रोथ भी कम है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है मार्केट में, प्लास्टिक ट्यूब, जो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा ही। फिर एमएनसी भी एंट्री ले रहा है तो न्यू एंट्रेंट का वापस डर है। कंक्लूजन ये है कि नॉट एडवाइजेबल। कंक्लूजन ये आ रहा है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू
start new business. At present मार्केट में अगर ग्रोथ आ रहा हो बहुत ज्यादा तब आप सोच सकते हैं. पोर्टर का फोर्सेस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमेशा डायनामिक रहता है. कभी आज ये बता रहा है तो कल कुछ और सिनेरियो भी जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाइएगा. क्या पता ये अभी आने वाला हो, अभी भी आरटीपी में आया ना नया नया, तो हो सकता है इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा ही हो. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. So here Audiotech is a company that designs, develops and sells audio equipments. Audiotech is best known for home audio system, speaker, noise cancelling headphones, professional audio system and automobile audio system. So Audiotech sells audio equipment to consumer through its large network of retail outlets in its home country and via the company's website. Audiotech purchases the material and component that it needs to manufacture ऑडियो इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर्स. बहुत सारे सप्लायर्स से ये खरीद के लाता है और इनका जो सेल होता है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ रिटेल आउटलेट्स में होता है वाया द कंपनीज वेबसाइट. एंड इट रिटेल आउटलेट से भी बेचते हैं एंड वाया कंपनीज वेबसाइट. दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और नेटवर्क ऑफ सप्लायर से खरीदा जाता है. ऑल ऑफ द परचेजेस आर डिलीवर्ड टू कंपनीज गोडाउन एट इट्स फैक्ट्री एंड आर हेल्ड देयर अंटिल दे आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग. सारे मटेरियल गोडाउन पे मंगा लिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको यूज किया जाता है. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री टू ऑडियोटेक्स रिटेल आउटलेट्स बाय कंपनीज ओन ट्रक्स. फिनिश गुड्स बनने के बाद कहाँ भेजा जाता है? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री टू ऑडियोटेक्स रिटेल आउटलेट्स बाय कंपनीज ओन ट्रक्स. इनका खुद का रिटेल आउटलेट्स है, उसमें अपने ओन ट्रक से इन लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट करा देते हैं. द ट्रक फॉलो द सेम शेड्यूल ईच वीक इररेस्पेक्टिव ऑफ लोड दे आर कैरिंग. Audio equipments that are required for sale via the company's website are transported to Audiotech's distribution center. तो distribution center maintain करता है, वहां से ऑनलाइन मीट कर लेते हैं और रिटेल आउटलेट्स में अपने ट्रक से भिजवा देते हैं. ट्रक सेम शेड्यूल फॉलो करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोड दे आर कैरिंग. मतलब अगर हर हफ्ते जाना है तो जाना ही है, चाहे लोड ज्यादा हो चाहे कम हो. कंपनी believes that it can attract more customers by offering quality products at reasonable prices. Each unit is tested for quality with a real-time analyzer, iPad app, and a calibrated microphone to measure how consistently each sound system reproduce various frequencies. तो फिर ये इनका प्रोसेस के बारे में बता रहा है आपको कि सबका क्वालिटी टेस्टिंग प्रॉपरली होता है. A bass test sweep tone allows checking how well the subwoofer managed low-end frequencies. Finally, they drive each in cars briefly to see how sound quality changes while on the move. The company aims to build customer loyalty also through high level of customer services and value chain analysis. ये चाहता है कि customer services दें and value chain analysis करें. Customer can return the product if quality specifications are not met. So customer returns का ध्यान रखा जा रहा है. There is a separate department to handle such complaints. Audiotech had implemented Balance Scorecard as a performance measurement and management system. Company has been doing great on financial parameters and customer satisfaction parameters. Market capitalization of the company has been increased considerably over the years. So अगर आप देखें तो अभी तक दो टर्म जो हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं वो आया है, एक वैल्यू चेन आया है और एक बैलेंस स्कोर कार्ड आया है. बैलेंस स्कोर कार्ड में प्रैक्टिकली 4 पर्सपेक्टिव होते हैं. एक होता है फाइनेंस, दूसरा होता है कस्टमर, तीसरा होता है बिजनेस प्रोसेस, चौथा होता है लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज. सो इसमें इन लोग 2 पर्सपेक्टिव पे अच्छे से काम किया है. Of late, the company has witnessed high employee turnover ratio. Though the company has a formal exit interview process for the resigning employees, the input received from these interviews is rarely considered in improving HR practices. So employee turnover ratio इनके यहाँ बहुत high है, ये concern है. कंपनी के यहाँ exit interview process है for resigning employees, but उनका input जो अपने receive करे उसके ऊपर उतना काम नहीं कर रहे. One of the common feedback from employees was that working hours are too long and they have to frequently work on weekends also, and there is so much pressure to improve customer service without adequate support of system and process. Also, the truck drivers have been on strike thrice in the last 1 year, demanding better pay, retirement benefits and good working conditions. ठीक है, तो truck drivers have been on the strike since
सिंस लास्ट 1 ईयर उन लोग को अपना रेमुनरेशन अच्छा चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए और गुड वर्किंग कंडीशंस चाहिए. फिर ऑडियोटेक इज कीन टू एड्रेस द अबव इश्यूज and recently held a meeting to discuss the performance of the company. The management accountant suggested to the MD to use an alternative performance measurement mechanism which considers all the stakeholders instead of just shareholders and customers. इससे क्लिक करता है कि stakeholders related कोई performance evaluation model था क्या. If you remember your notes, ये इससे related एक model था performance prism, stakeholder related. The MD is skeptical of the management accountant's suggestion and is unclear as to whether they are suitable for the company or not. Therefore, the company seeks your assistance. Required is आपसे अभी पूछा जा रहा है कंपनी को देखो करना क्या है. रिक्वायर्ड के पहले एक बार पूरा प्लॉटिंग कर लो वापस इन्फॉर्मेशन कि एक ऑडियोटेक कंपनी है, बहुत रेपुटेड है, लार्ज नेटवर्क है इसका, रिटेल का, कंपनी वेबसाइट से भी बेचता है, मटेरियल अलग अलग सप्लायर से आता है, गोडाउन में रखते हैं जब तक यूज नहीं होता, फिनिश गुड्स अपने ही ट्रक से ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, ट्रक सेम शेड्यूल फॉलो करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड, और जो ऑनलाइन बिकेगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बिकवा देते हैं. देन क्वालिटी टेस्टिंग भी बहुत स्ट्रांग है इनका. देन ये चाहता है कि हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस मेंटेन करे और वैल्यू चेन एनालिसिस करे. क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मीट नहीं होने से कस्टमर रिलेशंस बेटर करने के लिए सब कुछ रिटर्न ले लेता है. बैलेंस स्कोर कार्ड ऑलरेडी फॉलो कर रहा है. एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है क्योंकि एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है और वो लोग ज्यादा पेमेंट भी मांग रहे, गुड वर्किंग कंडीशन मांग रहे, सपोर्ट मांग रहे. और फिर इनके अकाउंटेंट को लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर में जाना चाहिए जो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को कवर करे, और हमारा एमडी उतना श्योर नहीं है कि वो अकाउंटेंट का सजेशन को फॉलो करे कि नहीं करे. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस primary activities of AudioTech in its value chain and also suggest if there is any scope for cost reduction in these activities. See, you have to first read your question. यहाँ पे दो क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज. आइडेंटिफाई माने नाम बताओ, एक्सप्लेन मतलब उसका डिटेलमेंट करो. और दूसरा क्वेश्चन है ये ऑल्सो सजेस्ट इफ देयर इज एनी स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन दीज एक्टिविटीज. नाउ डोंट कंसिडर कि खाली प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पूछा है. दो क्वेश्चन पूछा है. एक तो कॉस्ट कैसे कम होगा और दूसरा पूछा जा रहा है आप कैसे अपना प्राइमरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करोगे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे recommend an alternative performance measurement mechanism which considers all stakeholders instead of just shareholders and customers. तो इसका आंसर है परफॉर्मेंस प्रिज्म. ये एक क्वेश्चन है. And again second question है also indicate the performance measures as applicable to the situations of AudioTech in the alternative mechanism suggested by you. तो इसके अंदर एक और आंसर डालना है परफॉर्मेंस मेजर का. देखिए मैं इसको ऐसे रीड इसलिए कर रहा हूं कि आपको बताऊं कि यू हैव टू रीड योर रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली टू स्टार्ट योर आंसर. अब ये 10 है तो इसमें आप डिवाइड भी समझ सकते हो ना कि 6-4 का होगा या 5-5 का होगा. ऐसे यहाँ पे दो क्वेश्चन है तो ये भी 6-4 का होगा या 5-5 का होगा. वी डोंट नो द ब्रेकअप but still we have to answer two questions in part 1 and two questions in part 2. So first ये माथा में बैठाइए और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करिए. यहाँ पे मैं CS14 इसलिए लिखा हूँ कि इंस्टीट्यूट मैट को अगर आप खोलोगे तो उधर केस स्टडी नंबर 14 का कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो परफॉर्मेंस प्रिज्म के ऊपर था. तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज, इसलिए CS14 लिखा हुआ है फ्रॉम ICAI मैट. और ये वाला पोर्शन जो इन्होंने बताया वो अगर आप इंस्टीट्यूट मैट देखोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन है ताइवान करके, ताइवान टेक बोलकर एक कंपनी है टी टेक. तो उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे कॉपी किया बट बीच में बॉडी चेंज करके ले गया ये लोग थोड़ा वैल्यू चेन के हिसाब से समझाने के लिए. ठीक है. तो मिक्सिंग किया गया बेसिकली. केस स्टडी क्या किया गया, 2-3 केस स्टडी को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया गया. गुड इनफ. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन के बारे में अपने को बताना है. तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इफ यू रिमेंबर प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन क्या क्या होते थे, याद करो आप अपने आप. वैल्यू चेन का प्राइमरी एक्टिविटी था एक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दूसरा था ऑपरेशंस, तीसरा था आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, चौथा था मार्केटिंग एंड सेल्स और पांचवा है आफ्टर सेल्स सर्विस. तो 5 नाम आइडेंटिफाई हो गया. अब आइडेंटिफाई के बाद इसको एक्सप्लेन करना है. तो एक एक के बारे में आपको बताना है कि द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन आर
Number one, inbound logistics. Now, inbound logistics is about bringing the raw materials to our factory premises and keeping it uh, in the best storage facility so that they are easily available for use. तो वहां से वहां तक पहले आपने पहले बेसिक बताया कि इनबाउंड लॉजिस्टिक किस बारे में, देन यू रिलेट दैट विथ योर केस स्टडी. जैसे इन केस ऑफ ऑडियोटेक this company is procuring its raw material from different large number of suppliers, and all of it are being stored in company's godown until they are needed for production and assembly. So whatever activities are done during this stage, those will be covered under inbound logistics. बस इतना ही लिखना है. समझ में आया आपको? सेकेंड आ रहा है ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस किस बारे में होता है? इट्स अबाउट कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. So that's operation is about, it covers activities that convert raw materials into finished goods, and it may include testing of products that are being produced also. So company is offering, उसमें आप लिख सकते हो ऑडियोटेक is offering high quality products and it also test everything in real time analyzer app. ये वाला पैरा से रेफरेंस आप उठा के वहां पे डाल सकते हो. ठीक है. Then third आता है outbound logistics, which is about sending the goods to the distribution centers or to the retail outlets or to the customers. So for that you can refer to this para. So every para has some relevance. So this para is relating to outbound logistics. इसमें आपका ट्रक का जो बताया जा रहा है कि शेड्यूल मेंटेन करता है लोग डिलीवरी करवाने के लिए और ऑनलाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचाया जाता है. तो ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सच will be covered under outbound logistics. And इसमें अगर हम बोले तो ये वाला आपका हो गया operations related, टेस्टिंग वगैरह करना, और ये रॉ मटेरियल हो गया आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. इसका रेफरेंस आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में दे देंगे. देन इसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए आपको अपना व्हाट डू यू से अपना कस्टमर चैनल बेटर बनाना पड़ता है. उसमें आपको प्रोडक्ट प्रमोशन अवेयरनेस बेटर करना पड़ता है. तो पहले मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में बताया और उसके बाद ऑडियोटेक उसमें कैसे एक्टिविटीज करेगा उसके बारे में बताया. ओके. एंड लास्ट इज आफ्टर सेल सर्विस, जिसके लिए आपको यहाँ पे बताया है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट हम लोग मेंटेन करते हैं, कस्टमर कैन रिटर्न. तो आफ्टर सेल सर्विस में आप पहले बता दोगे व्हाट इज दिस एक्टिविटी अबाउट. आफ्टर सेल सर्विस इज अबाउट giving after sales support to the customers as well as handling customer complaints. So AudioTech is already having a separate department to handle this. It thrives to have high level of customer services. तो इस तरह से आपने अपना पहला पार्ट का आंसर जॉट डाउन किया. देन सेकेंड बोल रहा है सजेस्ट इफ देयर इज एनी स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन इन दीज एक्टिविटीज. अब कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? कॉस्ट रिडक्शन में जैसे आपके जनरल जो कॉस्ट रिडक्शन के पढ़ाई आपने किए हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बोलिए. जैसे कि आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का इनको बता सकते हो कि कौन सा, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक में कौन सा एक्टिविटी ऐसा है जिसका वैल्यू एडिशन उतना नहीं हो रहा, नॉन वैल्यू एडिंग ज्यादा है, तो उसको आप पहले एक थ्योरेटिकल वे में लिखोगे और फिर उसको कम, नॉन वैल्यू एडिंग को कम करने के लिए हम लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे. हम लोग फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड सजेशन मैं आपको दे रहा हूं. देखो सेकंड सजेशन हम लोग बोल सकते हैं कि आप JIT पॉलिसी फॉलो कर सकते हो. कम क्वांटिटी में खरीदो, फटाफट खरीदो, नियरेस्ट सप्लायर से खरीदो. इससे आपका मटेरियल का सारा हैंडलिंग कॉस्ट बच सकता है, गोडाउन का, और उससे WIP प्रोसेसिंग का भी इन्वेंट्री वगैरह कम हो सकता है. सो JIT का एक एडवाइस दे सकते हो आप. तीसरा नंबर आप TQM में चले जाओ कि आपके यहाँ पे इतना टेस्टिंग में टाइम आपको क्यों देना पड़ता है. सो आप अभी इसके टेस्टिंग के ऊपर इतना समय इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि इतना एरर आने का संभावना है. तो आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस पे ऐसा क्यों नहीं काम करते कि आपको टेस्टिंग टाइम कम करने से भी काम हो जाए. तो प्रिवेंशन कॉस्ट पे ज्यादा इनकर करिए, स्टाफ ट्रेनिंग और मे बी मशीनरी का आप थोड़ा सा इंस्पेक्शन वगैरह कराइए प्रॉपर, सो दैट टेस्टिंग का कॉस्ट भी बच सके. और ये जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, ग्रीवांस आ रहा है, वो ग्रीवांस का डिपार्टमेंट आपने बनाया वो अच्छी बात है, बट वो डिपार्टमेंट का जरूरत नहीं है अगर आप और बेटर क्वालिटी पे काम करें. जैसे TQM में अपने बोलते हैं ना, प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट पे काम करते हो तो फेलियर कॉस्ट बचता है.
तो ये एक तरह का फेलियर कॉस्ट ही है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नॉट मेट, इतना टेस्टिंग करने के बाद भी। तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मीट कराने के लिए हम लोग टीक्यूएम का सहारा लेके एडवाइस कर सकते हैं। एक और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ट्रक शेड्यूल आप बोल सकते हो, बिकॉज आपके यहाँ तो ट्रक शेड्यूल इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड मेंटेन किया जाता है, तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हो सो दैट आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सेविंग्स आए, वो आपको भी देखना चाहिए। सो ये जो मैंने बताया दोस्तों, इसका मैं आंसर आपको एक बार दिखाता हूँ आपके सजेस्टेड आंसर से। आप देखिए पहले कैसे आंसर फ्रेम किया गया है। पहले आपका बेसिक्स ऑफ वैल्यू चेन बता दिया गया। नाउ ये बताया, देखिए ये सब सजेस्टेड आंसर है, मतलब ये फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है। बेसिक्स ऑफ वैल्यू चेन बताया गया है, तो जरूरी नहीं आप पूरा बेसिक्स ऑफ वैल्यू चेन से ही आंसर लिखें। मेरा सजेशन ये रहता है इसमें कि आप इसका स्ट्रक्चर देख लें और आंसर अपने वर्ड्स में ही लिखें। और दूसरा कि एज इट इज किसी भी सजेस्टेड आंसर को रेप्लिकेट न करने जाएं। आपके पास एग्जाम में समय बहुत कम होता है, जिस तरह से सजेस्टेड आंसर आपको अपना आंसर्स बताता है, अगर आप पूरा पूरा लिखने जाएंगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो सजेस्टेड ये कि हर समय हिस्ट्री जैसा कुछ नहीं लिखना है कि वैल्यू चेन के बारे में पूछा तो पूरा वैल्यू चेन पहले बताएंगे फिर ही हम सब कुछ लिखेंगे। ओके, आपको अगर सटीक चीज मालूम है कि जो चीज पूछा है वो मेरे को आता है तो वहीं से शुरू करिए, अननेसेसरी अपने आंसर को इलेबोरेट ना करिए। जैसे आपके सजेस्टेड आंसर्स में यूजुअली ये काम करते ही हैं, इसलिए आपको सावधान करें कि अगर आप सब कुछ एज इट इज कॉपी करेंगे तो लिखने के लिए समय एग्जाम में नहीं रहेगा। तो जो मेन चीज रिक्वायर्ड है लिखना, जिसके पीछे मार्क्स है, उसका कहीं इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई प्राइमरी एक्टिविटीज, वो लिखने का समय नहीं बचा और सारा वैल्यू चेन एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन आप बता दिए, तो ऑब्वियसली मार्क्स कम मिलने। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेसिक्स ऑफ वैल्यू चेन बताया कि पोर्टर ने वैल्यू चेन को कैसे डिस्क्राइब किया है। इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी परफॉर्म दैट अ कंपनी परफॉर्म टू डिजाइन प्रोडक्ट, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट rather than looking at costs as per cost accounting cost pools. The value chain model focus on the workflow of the organization in the form of discrete set of activities that are linked to each other. कि पहले क्या होता था, काउंटिंग कॉस्ट पूल करने के लिए डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, तो अभी एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट माइकल पोर्टर ने हमें वैल्यू चेन के थ्रू समझाया। और उसने अपने वैल्यू चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज करके बताया। द आइडिया इज टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएटिंग और कॉस्ट लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज अमॉन्ग द वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को भी खोजकर उसमें कैसे हमें कॉस्ट को कम करना है, ये भी हमारा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। प्राइमरी एक्टिविटीज में जैसे मैं बता रहा था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है ये बताना है। मेरा सजेशन था कि यहीं से आंसर शुरू कर सकते थे कि प्राइमरी एक्टिविटीज के ये सारे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट इनबाउंड लॉजिस्टिक किस बारे में है, और फिर ऑडियो टेक का उसमें कैसे कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, फिर सेकंड आ रहा है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किस बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और ऑडियो टेक का इसमें वही टेस्टिंग वगैरह के बारे में आप बता सकते हो जो आपको केस स्टडी में मिला। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के इस बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ओके टू एंड यूजर कस्टमर, तो इसमें आपका ऑडियो टेक का कनेक्शन कैसे बैठेगा वो बताना है। जैसे कि वो शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ ट्रक्स, गुड्स यूजिंग ट्रक्स। फिर activities relating to order taking from retail outlet as well as direct orders on company's website, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो ये आप बता सकते हैं। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में इट इज अबाउट प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी। तो इसके बारे में क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट आप फिर भी लिख सकते हो कि ऑडियो टेक को रिटेल आउटलेट्स को मैनेज करना है और वेबसाइट को मैनेज करना है, तो उसमें प्राइसिंग कैसी होगी, और उसके रिटेल आउटलेट्स के ऊपर कोई ऐसा होगा कि कोई उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो रिटेल आउटलेट्स को हैंडल करेगा। ऐसा जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन होगा, चारों तरफ अवेयरनेस फैलेगा, वो कैसे फैलेगा उसको आप रेज कर सकते हो। ऑल ऑफ ऑडियो टेक एक्टिविटीज दैट रिलेट टू अबव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वेयर बाई इट एम्स टू स्प्रेड कस्टमर अवेयरनेस would be classified here. It aims to build customer loyalty by offering quality products. ये उसका एम है, तो उसके एम के हिसाब से उसको अपना प्रमोशन और सारा कम्युनिकेशन डिजाइन करना चाहिए। Then as service activities related to after sale service such as
इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड पार्ट रिप्लेसमेंट, ये सब इसमें क्लासीफाई होता है। फिर ऑडियो टेक का वो स्पेसिफिकेशन नॉट मेट के बाद आप कंप्लेंट हैंडल करते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे बता दिया। सी वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इज कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज, जिसमें एक सजेशन दिया हुआ है जेआईटी के बारे में, जैसा मैं आपको बता रहा था, जिससे आपका रॉ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाएगा और स्टोरेज कॉस्ट और रिजल्ट इन मटेरियल इंश्योरेंस कॉस्ट ये सब कम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लेवल कम होता है, राइट। WIP का भी कम होता है, तो फिनिश गुड्स का भी कम होता है, तो रॉ मटेरियल का भी कम होता है। सेकेंड है ट्रक डिलीवरी शेड्यूल को लेकर कि आपका अगर शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं है सिंक्रोनाइज, तो पता चलेगा हर बार आप ट्रक खाली खाली ही भेज रहे हो, दैट विल इंटेल एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो इसलिए प्रोडक्शन एंड ट्रक डिलीवरी शेड्यूल शुड बी स्ट्रीमलाइंड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली. It's not necessary that you write the entire this 7-8 lines in your answer. You can write too few lines also. 2 लाइन भी चलेगा, 1 लाइन भी चलेगा, बट वो सेंस रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखिए वो क्वालिटी को लेकर, TQM को लेकर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट पे काम करने से फेलियर कॉस्ट कम हो जाते हैं, तो उसके बारे में लिखा है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कब इनकर होता है और उसका सीवियर इम्पैक्ट होता है कस्टमर लॉयल्टी पे। तो ऑडियो टेक को क्या करना चाहिए, ये प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल कॉस्ट अच्छे से इनकर करना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपका सेट ऑफ हो जाए। 6 सिग्मा भी एडवाइस कर सकते हो आप TQM के साथ साथ, जिससे कि वो अपना क्वालिटी को मैनेज करें। सो दिस इज पार्ट A ऑफ द आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू पार्ट B। लेट्स कम टू पार्ट B। पार्ट 2 अगर आपको याद हो क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन है अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म बताना है जो स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचता हो, और दूसरा उसमें हर जगह परफॉर्मेंस मेजर्स भी हाईलाइट करने हैं। तो देखो इसमें ये वाला चीज उतना हाईलाइट नहीं होता आपका आंसर में। आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा आपका, बस जाएगा अच्छा स्टेक होल्डर रिलेटेड कुछ बात है, चलो बता देते हैं। परफॉर्मेंस प्रिज्म का नाम याद रह गया तो उसके बारे में बोलना शुरू कर दिए। बट परफॉर्मेंस मेजर बताना है हर एक में, उसका भी मार्क्स है, इसी चीज का खास ध्यान देना है। देखिए परफॉर्मेंस मेजर जो बनाया हुआ स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के लिए वो है परफॉर्मेंस प्रिज्म। ओके, परफॉर्मेंस प्रिज्म में इन जनरल क्या क्या कंसर्न रखे गए मैं पहले आपको वो दिखाता हूं। प्रिज्म में 5 इंटररिलेटेड फेसेट्स है। उसमें पहला आता है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको पहले पता करना है कि स्टेक होल्डर का नीड क्या है और स्टेक होल्डर है कौन, आइडेंटिफाई करो कौन स्टेक होल्डर्स है हमारे और उसके नीड्स क्या है। अब स्टेक होल्डर खाली कस्टमर या शेयर होल्डर्स ही नहीं होते, इट कैन बी गवर्नमेंट, इट कैन बी एम्प्लॉइज, ओके, so it can be society at large also. So you need to identify who are our stakeholders and what are their needs. Second facet है आपका परफॉर्मेंस प्रिज्म में स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन क्या है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट द स्टेक होल्डर्स टू कंट्रीब्यूट एंड डिलीवर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस स्टेक होल्डर से क्या कनेक्शन रखता है, वो हमें क्या दे सकता है, हम उनको क्या दे सकते हैं, वो आपको समझना है। इसमें आपको इसके बारे में बताना होता है। थर्ड स्ट्रेटेजीज, मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो स्टेक होल्डर का नीड पूरा हो जाए। व्हाट स्ट्रेटेजी शुड एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दैट डिराइव्स स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाइल रेसिप्रोकेटिंग बाय इंश्योरिंग देयर सेटिस्फैक्शन। फोर्थ आ रहा है प्रोसेसेस, अब वो स्ट्रेटेजी फुलफिल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, एक्शन प्लान्स क्या होंगे। और फिफ्थ कैपेबिलिटीज, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी नीड टू इफेक्टिवली ऑपरेट दोज प्रोसेसेस सो दैट वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट। ओके, तो 5 फेसेट है परफॉर्मेंस प्रिज्म के। ये 5 फेसेट को अब ऑडियो टेक कंपनी के साथ जोड़ना है और हर एक फेसेट में आपको कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स बताने हैं। ये परफॉर्मेंस मेजर छूट जाता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। नाउ एक चीज आपको दिखाऊं, इसमें और एक्स्ट्रा ज्ञान क्या लिख दिए। एक्स्ट्रा ज्ञान इतना सारा जो लिखे हैं वो रेकमेंड एन ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर। देखो उसका भी आंसर का राइटिंग पैटर्न है। खाली रेकमेंड एन ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर का नाम ये है। वर्ड रेकमेंड हैज ऑलवेज सम बैकिंग, इसमें बैकिंग होना चाहिए। बैकिंग माने आपको विथ रीजंस बताने पड़ेंगे कि व्हाई डू यू थिंक
that their current performance measurement system, which was balance scorecard, is not appropriate to meet the requirement of stakeholders. फिर आपको बताना होगा परफॉर्मेंस प्रिज्म के बारे में. तो ये एक रेकमेंड का वर्ड का मतलब होता है कि आप अपना रीजन के साथ सुझाव देंगे, ना कि सिर्फ सुझाव देके निकल जाएंगे मेरे को तो परफॉर्मेंस प्रिज्म ध्यान आता है, ऐसा नहीं. तो आपको पहले ये बताना आंसर के स्टाइल में कि व्हाई यू आर रिकमेंडिंग परफॉर्मेंस प्रिज्म. सो यहाँ पे देखिए रीजंस व्हाई इट वुड बी एन इफेक्टिव रिप्लेसमेंट फॉर मॉडल्स लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड आर. ये किसी के नजर में ना भी आए, एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो रेकमेंड के बारे में तो आपको रीजन लिखना नहीं आता, आप बोलते बस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. ऐसा नहीं. क्यों होना चाहिए, क्यों करंट सिनेरियो में इनका काम पूरा नहीं होगा जो ये चाहते हैं. तो बैलेंस स्कोर कार्ड का पर्सपेक्टिव क्या आप वो पहले बता सकते हो कि उसमें फाइनेंशियल, कस्टमर, बिजनेस, इनोवेशन, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव हम देखते हैं. बट यहाँ पे कंपनी का इच्छा है कि हम स्टेक होल्डर के ऊपर फोकस करें, तो वो बैलेंस स्कोर कार्ड में कवर नहीं भी हो सकता है. तो रीजंस क्या है, जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड फोकसेस ऑन जस्ट टू ऑफ द स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स, बट परफॉर्मेंस प्रिज्म विल कवर ऑल अदर स्टेक होल्डर्स. फिर मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल्स डू नॉट फोकस ऑन चेंजेस दैट नीड टू बी मेड टू स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस. जैसे आप अगर परफॉर्मेंस प्रिज्म का भी मेरे साथ पढ़े तो आपको याद हो लास्ट 2 में क्या था, स्ट्रेटजीज, लास्ट 3 में स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस और फिर कैपेबिलिटीज. तो इस तीनों पर सारे के सारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम काम नहीं करते हैं. हालांकि बैलेंस स्कोर कार्ड थोड़ा बहुत काम करता है. बैलेंस स्कोर कार्ड assumes that once the strategies are implemented, measuring a relevant set of metrics of performance will ensure that the rest of the business also functions properly. बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है कि वो आपका अदर स्टेक व्हाट डू यू से अदर जितना पर्सपेक्टिव है बैलेंस स्कोर कार्ड का, वो सारे बैलेंस पर्सपेक्टिव में जाकर वो पहले ऑब्वियसली बताता है कि वहां पे कैसे सोचना है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है. बट वो बैलेंस स्कोर कार्ड जो अपने पढ़ते तो उधर हमें समझाया जाता है कि इसमें कैसे सोचना है, हाउ टू लिंक एवरीथिंग विद द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, हाउ टू लिंक ऑल 4 पर्सपेक्टिव. बट उसका फोकस मोस्टली ये है कि आप फिर वो किया कि नहीं किया. जैसे कस्टमर पर्सपेक्टिव में आपने कुछ सोचा था तो वो किया कि नहीं किया, उसके लिए वो केपीआई प्रोवाइड करता है. दैट इज द मेन फोकस. बैलेंस स्कोर कार्ड रीअश्योर करता है कि ओके आपको कस्टमर पर्सपेक्टिव पे काम करना था, ये आपने केपीआई बनाया था, आप कर पाए कि नहीं कर पाए, आप इस पे ध्यान दीजिए. बट परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या करता है, आपको पूरा स्ट्रेटेजीज सोचवाता है, फिर प्रोसेसेस सोचवाता है, फिर उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे वो सोचवाता है. सो परफॉर्मेंस प्रिज्म थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोच रहा है, करवा के दिखा रहा है. बैलेंस स्कोर कार्ड खाली बता रहा है. तो बताना और करवाना में फर्क है. और एक यहाँ पे बोल रहा है अ कंपनी हैज अ क्विड प्रो क्यो रिलेशनशिप विद ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स. क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. मतलब आप दोगे तो आपको मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे. तो स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन भी आपको समझ लेना है और उनको भी क्या देना पड़ता है वो भी आपको समझना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहा है. सो आप 3 नहीं तो 2 भी लिख सकते हो, 2 नहीं तो आप एक भी रीजन लिख सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट ऑल 3. आप एक बेसिक रीजन लिख ही सकते थे कि बैलेंस स्कोर कार्ड में सारे स्टेक होल्डर्स को कवर नहीं किया जाता, इसलिए आपको परफॉर्मेंस प्रिज्म जैसा मेजरमेंट में जाना चाहिए. इतना भी लिखने से बनता है. ठीक है, अगर आप वो नहीं बता पाते कि प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज बाकी कोई नहीं ध्यान देता बट परफॉर्मेंस प्रिज्म ध्यान देता है तो वो तो बहुत अच्छा है. बट एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हो कि वो सारे स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देता था, अब आपको सब पे स्टेक होल्डर पे ध्यान देना है, तो आप परफॉर्मेंस प्रिज्म में जा सकते हो. पहले रीजन बताया, अब परफॉर्मेंस प्रिज्म में आ गए, उसके 5 पॉइंट को डिस्कस किया. और एक एक्स्ट्रा चीज, हर एक में परफॉर्मेंस मेजर बताना था. तो स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के लिए देखिए परफॉर्मेंस मेजर क्या है, ये परफॉर्मेंस मेजर पे स्पेशल अटेंशन दीजिए. पहले ऑडियो टेक हैज टू इंश्योर दैट, मेनली यहां पर मुद्दा बनाया गया एम्प्लॉय मोरल को लेकर. अदर स्टेक होल्डर में कस्टमर्स के लिए तो ये काम कर ही रहा है. ओके, फिर गवर्नमेंट और सोसाइटी को लेकर ऐसा यहाँ पर कोई मुद्दा खड़ा भी नहीं है. मेन एम्प्लॉय को लेकर ही ये
इशू चालू हुआ था कि वो लोग एग्जिट बहुत कर रहे हैं, मेजर इशू फेस कर रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय टर्नओवर को लेकर, तो इसलिए मेन मुद्दा यहाँ पे एम्प्लॉय को लेके ही बनाया गया है. तो ऑडियोटेक हैज टू इंश्योर दैट इट improves employee satisfaction in order to reduce its employee turnover. It should also address the issues faced by truck drivers and involve them in a dialogue. If they are not satisfied, company might suffer financially in the long run. So what can be the performance measure to track this? Employee turnover ratio, average employment duration of employees, number of strikes by truck drivers, etc. This way you can measure whether you are thinking about employee satisfaction or not. देन स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब उनका योगदान कितना है और कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है. जैसे अगेन दिस इज अ क्विड प्रो क्यू रिलेशनशिप. ऑडियोटेक प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स. द कस्टमर्स इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. जैसे हम कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो बदले में वो हमें प्रॉफिट्स देते हैं. वैसे ही अभी यहाँ पे बात हो रहा है ऑडियोटेक शुड प्रोवाइड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन टू इट्स एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉइज आपको क्वालिटी आउटपुट ला के देंगे, वो लॉयल रहेंगे, वो ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दे विल रिमेन लॉयल, दे विल परफॉर्म बेटर, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. Similarly, dialogue with truck drivers would be needed to provide better pay, retirement benefits, and good working conditions. Truck drivers, in turn, need to ensure timely and safe delivery of goods टू रिटेल आउटलेट्स. टाइमली एंड सेफ डिलीवरी वो लोग इंश्योर करके देंगे. इसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा कि आपका ये एम्प्लॉय ऐसा कर पा रहा है कि नहीं, बदले में आप वर्किंग कंडीशंस उनको अच्छा दोगे तो आप उनकी एफिशिएंसी चेक करोगे, प्रोडक्टिविटी चेक करोगे और फिर आप उनका ऑन टाइम डिलीवरी भी रेशियो देखोगे. तो ये परफॉर्मेंस मेजर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा है जो आपने नया सीखा इस क्वेश्चन के बदौलत. मुझे एकदम भी श्योरिटी नहीं आता कि एग्जाम में बहुत कम ही स्टूडेंट शायद मेरे नज़र में ये परफॉर्मेंस मेजर के बारे में भी पॉइंट आउट किए होंगे. ओके, नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेटजीज. तो स्ट्रेटजीज में व्हाट स्ट्रेटजीज ऑडियोटेक शुड नाउ टेक. तो ऑडियोटेक हैज टू रोल आउट स्ट्रेटजीज टू रिटेन एम्प्लॉइज बाय मीन्स ऑफ better pay, working condition, growth opportunities within the company. The strategy will be effective when employee turnover is reduced. Following these initiatives, issues faced by truck drivers need to be addressed by taking appropriate strategic decision. Strategic decision मतलब ऊपर टॉप लेवल पे decisions लेने हैं जिसको लॉन्ग टर्म तक इम्प्लीमेंट करना है. Absence of strikes will indicate that these decisions have been effective. नेक्स्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर एम्प्लॉय टर्नओवर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरीज आफ्टर इश्यूज विद ट्रक ड्राइवर हैज बीन रिजॉल्व्ड. आपको उससे पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजीज इफेक्टिव थी कि नहीं. ओके, देन प्रोसेसेस, व्हाट आर द नेसेसरी प्रोसेस टू सेटिस्फाई द अबव स्ट्रेटजीज. तो इसमें ऑडियोटेक शुड हैव वेल डिफाइंड प्रोसेसेस टू हायर अप्रोप्रिएटली स्किल्ड पर्सनल फॉर द जॉब. Transparent pay structure. This process may be owned by HR manager. The working condition can be improved by providing sufficient training and better working condition. अब इसका परफॉर्मेंस मेजर कैसे है. नंबर ऑफ पर्सनल हायर्ड एट वेरियस स्किल लेवल्स, एवरेज पे आउट फॉर ईच ऑफ दिस स्किल्ड ग्रुप्स एंड आवर्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मेंटेनेंस लॉग ऑफ ट्रक्स एक्सेट्रा. So that way you can check. It's not necessary to write all the measures. You can write one or two also. Question has not told you that how many measures you have to write. You can write 2 measures enough है कि personnel hire कितना हो रहा है, average payout क्या है, hours of training क्या है, and lastly capabilities. तो ऑडियोटेक may decide to increase pay salaries. However, it should have sufficient financial resources to make this payment. तो आप इसमें performance measure कैसे करोगे. Amount of spend on recruitment and training, ये सब पे आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो. ओके, सो पॉइंट इज जस्ट खाली नाम नहीं लिखना, उसको केस स्टडी के साथ कनेक्ट करना और फिर परफॉर्मेंस मेजर हर एक फेसेट के हिसाब से बताया गया. तो पहला परफॉर्मेंस मेजर अगर आप देखिए स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन को लेकर है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया एम्प्लॉय हमारा मेन स्टेक होल्डर हो रहा है अभी, जिसके लिए हम प्रिज्म वाला पूरा सारा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं. एंड उनका नीड क्या है हमारे से वो हमें समझना है. उनका नीड हमारे तरफ से क्या है या हम उनके प्रति क्यों सोचे, वो नीड आपको सोचना. हम उनके प्रति क्यों सोचे, तो हम उनके प्रति इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हाई टर्नओवर हो रहा है और फिर स्ट्राइक्स हो रही है. तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कैसे, टर्नओवर रेशियो से
ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से और नंबर ऑफ स्ट्राइक से। ऐसे आप मेजर कर सकते हो। यू हैव टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नीड। ओके, तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना देयर नीड्स, मतलब इंटेंसिटी कितना है आपको ये समझना है। इंटेंसिटी ऑफ नीड टू थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स, नीड टू थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स। दिस इज द मेन आइडिया कि वाई देर इज सच अ need to think about that stakeholder. Okay, so this way first point is coming. Second point is stakeholder का contribution क्या हो सकता है, तो वो आपसे क्या चाहता है और बदले में क्या देगा, उसको मेजर करने के लिए आप एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ऑन टाइम डिलीवरी ये बदले में आप उनसे पा सकते हो। स्ट्रेटजीज आपको क्या लेनी है जिससे कि आपको स्ट्रेटजीज क्या बनानी है जिससे कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने को मिले, तो उसका नीड, वांट एंड नीड सेटिस्फाई हो जाए, ये आपको देखना है और वो कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर। तो आपको स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा, बेटर पे का, वर्किंग कंडीशन का, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का, जो वो डिमांड कर रहे हैं। और उसको मेजर करने के लिए आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेटजी के बाद एम्प्लॉय टर्नओवर कैसा हुआ, डिलीवरी से एफिशिएंसीज कैसी आई। फिर प्रोसेसेस आपको बनाने पड़ेंगे कि कैसे आप उनका पर्पस को फुलफिल करोगे या स्ट्रेटजी को अचीव करोगे। तो आप ये बोलोगे कि मैं अच्छे से हायरिंग करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। तो उसके बाद उनका आप रिपोर्ट लोगे कि नंबर ऑफ पर्सनल हायर कितना हुआ, एवरेज पे आउट क्या हो रहा है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या हुआ, लॉग्स ऑफ ट्रक्स वगैरह आप देख सकते हो कि ट्रक्स का टाइम इन टाइम आउट क्या चल रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैपेबिलिटीज में देन आपके पास सब चीज कर पाने का कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होना चाहिए। तो वो अगर है कि नहीं वो देखना हो तो आप अपना फाइनेंशियल बजट देखिए, वो फिर उसके बाद आप कितना स्पेंड करने वाले वो देखिए, उसका टारगेट एक्चुअल से मेजर करिए। सो दैट्स हाउ यू विल बी राइटिंग योर आंसर। ओके, देखो एक इस बार के सेसेड आंसर में एक डिस्क्लेमर इंस्टीट्यूट ने हर जगह दिया है, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट फॉर ईच स्टेप। सो यू नीड नॉट राइट ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज प्रेजेंट हियर। मेरे पास स्टूडेंट्स के बार बार फोन आ रहे हैं, सर केस स्टडी इतना सारा कैसे याद करें, इतना सारा थ्योरी कैसे ध्यान रखें। कुछ नहीं, समझ के जाओ, बुलेट पॉइंट्स, मेन फेसेट्स, मेन पर्सपेक्टिव्स याद रखो, उसका फिर अंदर में बना बना के लिखो। कुछ पॉइंट्स आपको क्वेश्चन से जोड़ जोड़ के लिखने होंगे और कुछ आपको अपने मन से क्रिएट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर पूरा मन से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आई विल से कि इस क्वेश्चन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो था ये परफॉर्मेंस मेजर को सोच के लिखना। बाकी तो फिर भी आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप काम करके निकल सकते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट था ये रेकमेंड में रीजंस बताना कि वाई बीएससी इज नॉट अप्रोप्रिएट राइट नाउ। ठीक है, we are coming to the case study question of supply chain management which is given in your ICA mat. Let's study it. What is it about? Sun Electronics manufactures and sells various electronic goods like mobile phone, laptop, television, refrigerator, etc. The company sells these goods through 30 stores situated in different parts of the country. The store manager places a request to the centralized team situated in Mumbai on a monthly basis. स्टोर मैनेजर क्या करता है, एक सेंट्रलाइज टीम को ऑर्डर प्लेस करता है। वन स्टोर कैन सेंड ओनली वन रिक्वेजिशन पर मंथ। तो स्टोर मैनेजर को सारा रिक्वायरमेंट एक साथ इकट्ठा करना होगा और महीने में एक बार ऑर्डर करेगा वो सेंट्रलाइज टीम को। द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर्स आर फॉरवर्डेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. Once the goods are manufactured, the goods are sent to central warehouse in Mumbai and are dispatched to different stores according to the store requirements. सारा requirement को ascertain करके production team को दिया जाता है, फिर वो produce करके warehouse में भेज रहे हैं और warehouse stores को भेज रहा है. The time taken from placing a request from store to the delivery of the product to the store takes about 30 to 40 days on an average. तो requirement आने के बाद और store में वो पहुंच जाने के लिए 30 से 40 दिन लग जाता है. इन द प्रोसेस द कंपनी प्रोक्योर्स पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स. द कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज विथ मेनी वेंडर्स लीडिंग टू डिले इन प्रोडक्शन. The average holding period of inventory in Sun Electronic is very high at 45 days as against industry average of 15 days.
Since the order to delivery time at a store is very high, the company has traditionally allowed high inventory holding to reduce the stock outs at store level. ये डिलीवरी आने में अगर आपका 30-40 दिन लग जाएगा अगर, तो हम लोग ज़्यादा इन्वेंट्री रख के ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इसलिए हमारे यहाँ हाई इन्वेंट्री रहता है. ठीक है. Average inventory holding is very high at 45 days. So we are keeping very high volume of inventory at our stores. The company is under severe pressure to improve its working capital cycle. A high amount of inventory held at each store also means that the products become obsolete quickly. Of course, in case of products like mobile phones, new and upgraded versions are available in the market as early as 6 months from the date of initial launch of a particular model. A significant portion of inventory of mobile phones become obsolete every year. The company generally resorts to discounted sale to liquidate such obsolete models. The management at Sun Electronics has identified e-commerce as an opportunity for faster growth, both in terms of revenue and profitability. The company is considering launch of its own e-commerce website to sell all products which are currently being sold in physical stores. Depending upon the success of online sales, the company might choose to optimize and close certain physical stores in the next couple of years. तो अगर ऑनलाइन में हम सक्सेसफुल हो गए तो कुछ फिजिकल स्टोर्स भी बंद कर सकते हैं. Management of company is cognizant, यानी aware of the fact that existing inventory procurement and management system will not fit into the new e-commerce business. E-commerce works on an inventory light model. Light model मतलब हल्का इन्वेंट्री रखना है, and quick as well as on time delivery of products of the customers. The fact that customers could be from a location other than those where Sun Electronic has physical presence makes the matter complex. अगर कोई ऐसा जगह से कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर दिया जहाँ पे हमारा स्टोर नहीं है, तो ये मैटर और पेचीदा हो सकता है. Now required is the company is considering implementation of a supply chain management system. Will a supply chain management system be of use to Sun Electronics in the light of e-commerce venture? You are required to explain the concept of supply chain management and evaluate the applicability of it in the current case. तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताना है, कॉन्सेप्ट समझाना है और फिर बताना है कि वो कैसे इनको हेल्प करेगा. ठीक है. तो कैसे इसका आंसर फ्रेम करना, आप प्लॉटिंग देखिएगा कि पहले इन्होंने सारा इशू को बताया कि सब इनके यहाँ पे समस्याएं क्या क्या हो रही है. समस्या ये हो रही है कि इनके यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, इनका यहाँ पे डिलीवरी टाइम 30-40 डेज का है, उसके कारण इन्वेंट्री होल्डिंग ज़्यादा है और प्रेशर आ रहा है इन्वेंट्री का साइकिल को बेटर करने के लिए. फिर इनके यहाँ पर ई कॉमर्स का ऑप्शन अभी नहीं है, तो अगर ई कॉमर्स का ऑप्शन अगर आ जाए तो इनको लग रहा है कि ये ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, बट उसमें भी इनको चिंता है कि कैसे वो डिलीवरी शेड्यूल मीट कर पाएंगे. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा बता रहे हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी समझा रहे हैं. ओके. ये एक और पढ़ाई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, SCM प्रोसेस एंड एप्लीकेबिलिटी टू सन इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. एंड उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हम उसे समझा रहे हैं कि कैसे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा, और ई कॉमर्स के साथ SCM कैसे सूट करेगा वो भी बता रहे हैं, और उसके डिफरेंट प्रोसेसेस जो सप्लाई चेन के हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करके बता रहे हैं. तो क्या क्या चीज बता रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व करिए. एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि पहले हम लोग इश्यूज बता रहे हैं. इश्यूज में क्या क्या इश्यूज है, की इश्यूज को मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर पहला इशू है कि आपका स्टोर मैनेजर्स आर अलाउड टू सबमिट ओनली 1 ऑर्डर पर मंथ. हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री दूसरा इशू है. ठीक है. वो लॉन्गर वर्किंग साइकिल तीसरा इशू है. मोबाइल्स गेट आउटडेटेड चौथा इशू है. ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी है बट उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो ई कॉमर्स को इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर सके, बिकॉज यहाँ पर डिलीवरी वगैरह का बड़ा समस्या है. फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम लोग हमारा पूरा फ्लो ऑफ गुड्स
फ्रॉम ओरिजिनल सप्लायर टू एंड कंज्यूमर्स को मैनेज करते हैं, एंड कस्टमर का वैल्यू एडिशन कैसे हो और अदर स्टेक होल्डर्स का वैल्यू एडिशन कैसे हो उसके बारे में सोचते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन which begins from the origin of products and ends at products consumption at the consumer end. ठीक, इसमें पूरा आपका की बिजनेस प्रोसेसेस हैंडल हो जाता है बिजनेस का, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. In other words, supply chain involves management of all activities associated with moving goods from raw material stage to the end user. वो repetition चल रहा है, आप ऊपर का ही पहला पैरा लिख के छोड़ सकते हैं. Now, following are the various activities which an organization carries out to meet customer requirement. ये porters value chain के हिसाब से बता रहे लोग. ये चीज basically आप value chain का पढ़ाई जहाँ पे करते हैं वहाँ पे सीखते हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही बात होता है. वैसे सप्लाई चेन में हम लोग लिंक समझते हैं कि हम किससे जुड़े हुए हैं, सप्लायर से और कस्टमर से, और वैल्यू चेन में हम अपने अंडर में कितने एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं उसके बारे में सोचते हैं. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट की बिजनेस प्रोसेसेस जो हमने सप्लाई चेन में पढ़ा था, कि आपको प्रोक्योरमेंट पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन पे ध्यान देना है, डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो पे ध्यान देना है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है. ठीक है, तो फॉलोइंग आर द वेरियस एक्टिविटीज विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, दैट इज द प्राइमरी एक्टिविटीज अंडर वैल्यू चेन. जैसे कि नाम आपको याद हो वैल्यू चेन का, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस. सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम ये भी है कि वो हर एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है और इंटर रिलेट करके चलता है. ओके, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बात हो रहा है, और इसमें आप चाहो तो थोड़ा और डिटेल में जो आपको याद आ रहा हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, आप अपना 8 बिजनेस प्रोसेस के बारे में भी बता सकते हो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया गया था. नाउ इसके बाद ये जो लिखा है ना, फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन द केस इंडिकेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एट सन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिपीटिशन है इश्यूज का. तो ये इशू रिपीट किया गया है, इश्यूज बीइंग रिपीटेड हियर. तो क्या तो आप इश्यूज में इसको लिख देना या फिर ये पैरा हटा देना. ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपका रिपीटेशन है, तो इसको वापस लिखने का जरूरत नहीं है. फिर एससीएम प्रोसेस को अप्लाई करने का जो स्टेप्स है वो है प्लान. द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. It must shift its focus from ad hoc and predetermined production planning to understanding the requirement of customer. Production must be planned based on demand of products. The focus must be on producing what the customer wants. Produce वो करिए जो customer को चाहिए. Develop मतलब procure. In this step, materials required for production is sourced from various suppliers. Good relationship with suppliers is required to ensure the parts and materials are received as and when required. It is important that vendors supply quality material, because इनके यहाँ पे एक इशू दिखाया था कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं सप्लायर से तो डिले और ज्यादा होता है. तो आपका सोर्सिंग में प्रॉब्लम है, आप क्वालिटी सप्लायर के साथ काम नहीं कर रहे. कंपनी मस्ट सिलेक्ट सप्लायर्स विच आर डिपेंडेबल and can deliver quality products in the stipulated time. The company must focus on reducing the lead time required for sourcing, which will reduce the inventory holding period also. Then third is make. Make is about manufacture. It is making money, manufacturing the goods required by the customer. This is quite different from existing practice where store managers are allowed to place only one order. This would mean the company is not considering the ever-changing demand and tastes of the customers. Okay, this would mean that the company is not considering the requirement of customers because it is restricting its store managers to place only one orders in a month. Okay, and lastly it is deliver. The fourth stage is to deliver the products manufactured for the customer. Okay, this stage is concerned with logistics, that is आप कितना जल्दी डिलीवर कर पाते हैं. और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में जाएंगे तो आपको और भी फास्ट डिलीवर करना पड़ेगा. तो लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटायर सप्लाई चेन प्रोसेस. लॉजिस्टिक माने ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट
of material, movement of raw material in the plants, and final delivery of products to customers, logistics play a critical role. लॉजिस्टिक्स जैसे पोर्टर्स वैल्यू चेन में दो तरह से बताया गया कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड मतलब मटेरियल लेके आना, आउटबाउंड मतलब गुड्स को पहुंचाना, और एक विद इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी मटेरियल इंटरनली मूव करता रहता है, उसको भी लॉजिस्टिक्स में ही बोलते हैं. तो लॉजिस्टिक्स को लेके इंपॉर्टेंस बता दिया यहाँ पे कि एक्सेलेंट सिस्टम मस्ट बी पुट इन प्लेस to ensure that movement are uninterrupted. Okay, so there is logistic part here. Then warehousing, they are saying, also plays important role in today's business environment. The company has a centralized warehouse to meet the need of all its stores. This would not be the most efficient way, correct? तो इनके पास एक ही वेयरहाउस है मुंबई में, सारा प्रोडक्शन करके वहीं जाता है, फिर वहां से स्टोर्स में डिस्पैच होता है, तो ऑब्वियसली डिस्पैच में फिर टाइम लग सकता है. कंपनी मस्ट इवेल्युएट creation of additional storage facility which would ensure timely delivery of goods to the stores, वरना आप मार्केट लूज कर जाएंगे. अब बेनिफिट्स ऑफ SCM क्या होगा, जैसे यहाँ पर सन इलेक्ट्रॉनिक को आप क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू SCM. SCM लुक्स एट द एंटायर वैल्यू चेन प्रोसेस एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. सब एक दूसरे से कनेक्टेड समझा जाता है. दिस इज अ सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट्स बिटवीन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. The customer requirement would be captured to plan the production. The suppliers would be intimated to supply the materials as per the production plan, and the logistics system ensures that movement of material is seamless. Sun Electronic can also consider implementing an integrated ERP which could also interact with vendors on real-time basis. तो अगर आप ई वाला सिस्टम में आ जाए, ई प्रोक्योरमेंट, जिसके बारे में अभी तक ऊपर में जिक्र नहीं था, तो आप ये वाला सिस्टम का और भी बेनिफिट ले पाएंगे. फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी एनविसेज्ड फॉर सन इलेक्ट्रॉनिक्स. बेनिफिट्स ये है कि आप कस्टमर सर्विस को बेटर कर पाएंगे, डिलीवरी को बेटर कर पाएंगे, आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज कर लेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम रिड्यूस कर लेंगे, आपका ऑब्सोल्यूशन कम हो जाएगा, सप्लायर रिलेशनशिप बढ़ जाएगा. बेसिकली यू कैन राइट अबाउट हाउ इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड. रिजॉल्विंग द इश्यूज ही बेनिफिट है, रिजॉल्विंग द इश्यूज ही आपका बेनिफिट्स है. आप जो इश्यूज लिखे थे उसका अपोजिट लिख दीजिए कि ये फायदा आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आने से हो सकता है. देन ई कॉमर्स एंड SCM में कैसे उसका बेनिफिट आएगा. SCM इज द बैकबोन ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और कस्टमर्स बाइंग प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरीज टू बी फास्टर, राइट. Another distinct feature of e-commerce is that buyers could be located in any corner of the country and not just restricted to the cities where Sun Limited are having the stores. This definitely means that the company must have an effective supply chain management in place which could meet customers' requirement. The existing practice of one order per month would not work with e-commerce model. Orders can come at any time from anywhere. Supply chain management would be required for success of e-commerce business. You can also write that their company can make its warehouse with capable of delivering any product to any customer directly rather than sending it to stores and then delivering from the stores. तो ये यहाँ पे आप एडवाइज कर सकते हैं इनको. कस्टमर ऑर्डर्स को लेकर ई कॉमर्स में कैसे डील करेंगे. कंपनी मस्ट हैव एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू कैप्चर कस्टमर ऑर्डर्स एंड फीड इनटू प्रोडक्शन प्लानिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस, जैसे अमेजन में मैंने बताया था. एन इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज. एनी डिले इन इंटीमेटिंग द प्रोडक्शन टीम would mean delay in production and delivery which would not be taken positively by the customers. Okay, customers orders में delay is not acceptable. Existing system of one order per month वो again repeat कर रहा है. A real time in one order would not fit in the purpose. A real time flow of information would mean lower inventory holding. Then procurement में भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट करिए, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करिए कि आपका जैसे ही मान लीजिए ऑर्डर आया वैसे ही वेंडर के पास भी ऑर्डर चला जाए. प्रोडक्शन के लिए द प्रोडक्शन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमर ऑर्डर. दिस रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन अप्रोच ऑफ द प्रोडक्शन टीम. मतलब आप पुश सिस्टम से पुल सिस्टम में प्रोड्यूस करोगे. कस्टमर विल बाय व्हाट वी प्रोड्यूस टू वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाट द कस्टमर्स रिक्वायर, यानी कि पुल सिस्टम. पहले था पुश सिस्टम, तो पुश से आप पुल में आ जाओगे. द कंपनी वुड आइडियली नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स टू स्टोर देम एंड सेल लेटर.
तो कस्टमर का ऑर्डर आएगा तभी आप प्रोड्यूस करिए और तो उसी समय आप रियल टाइम बेसिस में प्रोक्योरमेंट करिए। लॉजिस्टिक्स के बारे में फिर रिपीट हो रहा है कि राइट फ्रॉम सोर्सिंग टू डिलीवरी टू डोर स्टेप्स एट द कस्टमर डोर स्टेप, लॉजिस्टिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। द कंपनी हैज एन इन हाउस लॉजिस्टिक फैसिलिटी, लॉजिस्टिक टीम मस्ट बी ट्रेन्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस। If the company has outsourced the logistics, vendors must be briefed about the requirement of the e-commerce. Company might have to tie up with new logistic vendors to avoid any delay in the deliveries. Logistics is that important कि एक बार ऐसा हुआ कि फ्लिपकार्ट में एक दिल्ली की किसी महिला ने ऑर्डर किया होगा फोन को और ऑर्डर आने में लेट हो गया, तो डिलीवरी बॉय को समझी ये फ्लिपकार्ट का आदमी है और उसको इतना मारी है कि वो लहू लुहान हो गया और मार मार के उसको कहीं चाकू वाकू तकायत मार दी और उसको फिर रास्ते में गिरा दी। तो कहीं से पता चला तो वो हॉस्पिटल गया, तब फ्लिपकार्ट तक मैटर रिपोर्ट हुआ, तो उसको डिलीवरी बॉय को तो फ्लिपकार्ट ने देखा, बट आप इमेजिन करिए कि लॉजिस्टिक्स प्रॉपर नहीं होने से कस्टमर कितना अग्रीव्ड हो जाता है कि ऑनलाइन में आप लोग ऑर्डर ले लेते हैं और टाइम पे नहीं लाते। फ्लिपकार्ट को तो उस महिला ने देखा नहीं, वो सोची कि जो डिलीवरी बॉय है वही फ्लिपकार्ट है, चलो इसको धो, इसको सबक सिखाते हैं। तो लॉजिस्टिक्स हैज टू बी वेरी वेरी fit and perfect when you are going into e-commerce. You see, I just read all these to give you more literature, and I am not expecting that you will copy the same literature in your answer if the same question comes in your exam. What you will be doing is first just see the structure of the answer. Whenever you are revising all these, you will only see the structure. You need to remember all the concepts of supply chain management for sure. Then you just remember the structure कि पहले आप बता दीजिए यहाँ पर इशू क्या है। इशू नहीं भी बताए तो भी आपको क्वेश्चन जैसे बोला कि आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएट करना है कि ये कैसे अप्लाई होगा इनके यहाँ पे। तो आप पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में ही बोलना शुरू कर दीजिए, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और फिर इसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं आप वो बता दीजिए, उसमें की बिजनेस प्रोसेस को भी हैंडल करता है वो भी बता दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि कंपनी में जो इश्यूज है वो कैसे सप्लाई चेन में से सॉल्व हो सकता है। तो इशू वाइज एक एक इशू को लेके हैंडल करिए ना, कोई जरूरी नहीं है कि इनके तरह से आंसर लिखना है। कंपनी के इश्यूज हम लोग पहला पैराग्राफ में नोट्स में लिखे ही थे कि कंपनी का जो इशू है कि यहाँ पर 1 ऑर्डर पर मंथ आप प्लेस कर सकते हैं, तो उसके कारण हाई होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप ऐसा कोई सिस्टम बनाइए जिससे कि आपका ऑर्डर रियल टाइम बेसिस में अपडेट हो पाए। और फिर प्रोडक्शन वाला लोग को इतना डिले क्यों होता है, क्योंकि उनको क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलता, वेंडर्स भी डिले करते हैं देने में। तो उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम बनाइए जिससे कि वेंडर्स के पास ऑर्डर प्लेस हो जाए, राइट। तो ऐसे आप एक एक इशू को हैंडल करिए। तीसरा, इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लो वेल प्लान्ड है कि नहीं, मटेरियल मूवमेंट वहां पे ठीक से हो रहा है कि नहीं। आप और भी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं जो आपके नॉलेज में आ रहा है। देन ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का एक इशू है, तो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का इशू हम लोग तब रिजॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल लो रह पाता है। और सप्लाई चेन में अगर आपका स्टोर जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है अपने प्रोडक्शन टीम को, वो अगर फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस कर पाए तो ऑब्वियसली वो डिलीवरी टाइम कम होने से ऑब्सोल्यूशन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और ई कॉमर्स जो आप लाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट करना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक आपको लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर्स भी करना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर को भी पल पल का खबर रहे, सो दैट आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे SCM प्रोसेस में ये प्लान डिलीवर मेक, प्लान प्रोक्योर मेक डिलीवर बताया, उसके जगह आप अपना की बिजनेस प्रोसेस भी बता सकते हैं। इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। The idea is you should be knowing about the concept of supply chain. It's not that you have to just copy paste the entire notes of this solution given by ICI. Okay, this is what ICI even has said in its case study chapter in the Institute Mat, that we don't want you to copy paste what we have written. You can always write a different answer, but your application should be
कनेक्टेबल, इट शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। आप जो भी बता रहे सप्लाई चेन का खाली उसका थ्योरी बोल के आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं देंगे। सन इलेक्ट्रॉनिक को कनेक्ट कर करके उसमें आंसर लिखना है। इसके लिए सजेशन यही रहता है कि आप एक बार दो बार आंसर लिख के देखिए और फिर देखिए वो कितना कनेक्टिंग था। नहीं तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, 3 घंटा टेस्ट दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी तो पढ़ के आए, आप अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। फाइन। तो इसके साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पढ़ाई खत्म हुआ। ओके।